गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ एन एज आई एम अ टीचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट and now vice principal in St. Joseph Inter College, Gurgaon. Today we are going to discuss a very important point for the students who want to study and but mostly they are focusing particularly some subjects. So we are going to discuss the importance of subjects which are important and which is not important. So let's start. This topic is very important for all the students who are going to teach the tuition coaching center and taking help to others. First of all, you think about it. So now we are discussing firstly Hindi. क्या हिंदी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दिस पॉइंट. आई थिंक दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज रीजन आर हिंदी इज स्पीकिंग, writing, thinking more, and in competition. They are the four reasons for Hindi. This is a very important subject. Why? You can speak more over the sentences. You can write your thoughts in Hindi. Your thinking power, your thinking ability will be improved to learn Hindi. And in competition level, there are many questions you have to ask in Hindi. Basically, that are related to their grammatical section, समास, अव्यय, संधि विच्छेद, and many more questions now are coming in competition examination. So Hindi is a basic subject, but it is very important. So learn Hindi also, because of you are going to fight in future. So you have to learn again them like alankar, sandhi vichhed, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण. Many questions are very important. A, A, E is also very important. Ka, Kha, Ga, Ga. This is very important also. You know, ask your elder brother and sister who are competing now. So Hindi is very important, and their writers are very important. Their writers and their books are very important, like कबीर, तुलसी, सूरदास. इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो भी कंपटीशन में बहुत कुछ लाती है. सो you prepare yourself for your future. Now the second, we are taking English. What can you say about it? This is a global subject now.
Hindi is spreading. I know, you can search in Google. This is the second language in the world. But English is a global language. So, speaking is very important in English. Grammatical section is very important. And listening and writing. All four sections are very important. They can help you to go to the abroad also, because IELTS exams are taken by the government, or they are very important for you. So speaking in English is very important. Grammatical section like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and many others. Simile, active, passive, direct, indirect. These are also very important in the part of grammar, that you can express your answer in many ways. You can express your thought like Hindi. So English may be your power for future. If you are going abroad, if you are going to a particular private companies, if you are doing MBA, BBA, and then after you are going multinational company, then the importance of English is very important for you. So guys, this is the second subject. I think it is very important for you. Speaking, grammar, listening is very important also. Now I am speaking. You listen my words. Can you listen? Can you imagine? Can you think about it? What I am saying? What is the particular topic here? So, listening is very important. What the other person is saying to you, what you want, what is the particular meaning of the, and what is the tone also. Think about the tone. Suppose मैंने आपसे कहा प्लीज सिट डाउन, दैट इज ए पोलाइट सेंटेंस. अब मैंने कहा सिट डाउन. सो वर्ड्स आर सेम बट द टोन इज, that is a order sentence. Please sit down is a request sentence. So it is very important to know about the tone of the particular English language. And fourth, writing is very important. Now you can speak, you can listen carefully, and your grammar is also very good. So can you write the particular essay of any topic? Can you express your thought in any matter? That is a part of knowledge. If I say about the current politics of India, you can speak English, but you don't know about the current politics of India. So how can you express your thought? Even you are not reading the newspaper, you are not updating your knowledge, you are not watching the news in TV particularly, so you can not attach to the particular policy. Do you know Ranil Vikram? Who is Ranil Vikram Singh? If you are interested in the foreign politics, then you can say yes, I know he is a president of Sri Lanka. So this is very important, guys. If you can speak English, then you have to update yourself also in politics, in games, in social activities,
current event, these are very you. Then you can speak English and then you can write properly to the particular topic. If the words, if the thoughts, if the story is particularly in your mind, then only. Okay? Now, so Hindi and English are very important subject. You have to command on the particular subject. Now the taking next, mathematics. Now you already know this is very important subject because the value of the mathematics teacher is more than of the other teachers in the school. You can see in your school, you can imagine, and you know already about it. Now what is the use of mathematics in our life? Mostly when we are buying, purchasing, selling, and others. Mostly in every part of life is basically depend on mathematics. Suppose you are going to Kasipur to Ramnagar by bike. So how many liter of petrol you will expend going to Ramnagar and returning? This is a part of mathematics. If you are going to Delhi by car, so how many liter of petrol you expect, and what is the average of your car per kilometer? This is a part of mathematics. Now you have to pay your monthly fees in a school. So what is the fees of 12 months? How many rupees you already paid in school and what is the balance now? So this is a part of mathematics. You are going to purchase vegetable from the market and you have 50 rupees in your pocket and you buy many vegetable there. So what is the rate of the particular vegetable and how many kg you wanted to buy? You want to buy. So this is a part of mathematics. In our daily life, the use of mathematics is more and more. Without mathematics, you cannot survive. Because if you have 2000 rupees note in your pocket, then how you will spend in all activities and you have to save. अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आप लाइफ में अपने रुपए पैसे का सही हिसाब नहीं रख पाएंगे. आप 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पाएंगे. क्यों? कि आपकी मैथमेटिक्स कमजोर. सो दिस इज अ वेरी important subject. But Hindi and English is also very important. कंपटीशन में मैथमेटिक्स काफ़ी पूछा जाता है, बट हिंदी भी उतना ही पूछा जाता है. एंड इन मैनी एग्जाम्स इंग्लिश इज ऑल्सो बेसिकली इन बैंक सेक्टर. English is very important in that particular examination. Now, other subject, this is
science. Now, what about science? All the invention you can see around you, that is science. This is a part of science. इसमें केमिकल भरा हुआ, उस केमिकल से ये चलता है. वो केमिकल क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनाया जाता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ साइंस. ये बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, वाइट बोर्ड है, किस चीज़ का बना है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, बोर्ड क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, आयरन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, बिजली क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इन आवर लाइफ. अब साइंस, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस. साइंस के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. अब बायोलॉजी के भी दो हो जाते हैं, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे हो जाते हैं, फिजिक्स के भी बहुत आगे जाके पार्ट हो जाते हैं. जब आप इफ़ यू गो टू हायर स्टडी देन यू विल नो अबाउट इट. छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं साइंस के. बट 6, 7, 8, 9, 10 तक आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं साइंस में. फिजिक्स, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक के बारे में, मैग्नेट के बारे में, मोटर के बारे में, पंखे के बारे में, घर की वायरिंग के बारे में सीखते हैं. इन केमिस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी केमिकल है आज हमारे खाने में मसाला डाला जा रहा है, दैट इज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. आपका जो खाना बन रहा है कुकर के अंदर, दैट इज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. आप मार्केट से दवाइयाँ खरीद के ला रहे हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री. सो गाइस, बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बायो, zoology and botany are 2 subjects in the bio. Zoology and botany, you can particularly know about the plants and their survival, and about animals in biology. So this is a very important part. If you want to be a doctor, then biology is very important, chemistry is very important. There is no use of mathematics and physics there. But if you are going to a electrical engineer, then physics is very important. ये बिजली का जो चल रहा है सिस्टम, एक ठेकेदार एक मकान बनाने में बिजली का जो होता है लगभग 2-3 लाख रुपए ले जाता है. What do you think about it? फिजिक्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बिजली की दुकानें आप देखिए, कितना माल बेच रहे हैं. That is a very important subject. Physics is very important subject for you. And chemistry is also. केमिकल क्षेत्र में आप जाइए, आज माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन गया. जितने लगातार वायरस आ जा रहे हैं, तो नए नए साइंटिस्ट की जरूरत है जो दे थिंक अबाउट द पर्टिकुलर वायरस एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू फाइट द पर्टिकुलर वायरस, लाइक Corona, Omicron, and now monkeypox is also coming. So, chemistry is very important. And what is the use of biology? I have told you about the plants and their survival. कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते हैं, सूरज की रोशनी में किस तरह से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरह से वो अपने फूड को स्टार्च
के रूप में स्टोर करते हैं, कैसे ग्लूकोज जनरेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जब आप उसको पढ़ेंगे, एंट्री करेंगे, बहुत मजा आएगा। बट you think which subject is most important for you and why? You particularly know the reason first, then you go to the deep study about the particular subject. But your timetable is very important for all these subjects. Take equal time to give equal time to particular subject, one by one. Now, next subject, SST, Social Study. There are also many branches in SST like history, geography, civics, economics, and others. In the all competitions examination, mostly GK question will be asked. GK question are asked to you. So, what is the GK? That is related to your science, that is related to your Hindi also, that is related to your physics, chemistry, bio, and mostly questions are asked from the SST. Like history. What is the part of history? History क्या है, इतिहास क्या है? You have to learn your history about your particular states. You have to learn the questions about your country and area also. आज क्वेश्चन बड़े हार्ड पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, एंड हिस्ट्री भी 3 तरह की होती है। जो आपकी सबसे पुरानी हिस्ट्री है, प्राचीन आदि ऐतिहासिक काल से पीछे से, उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री आती है, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो 3 हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ये नहीं कि ओनली 1 हिस्ट्री पढ़नी। आपने स्वतंत्रता आंदोलन वाली भी हिस्ट्री पढ़नी है। एंड द करंट क्वेश्चंस ऑल्सो आर, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, then you will say Draupadi Murmu. So many questions are asked in competition level exams from the SST, and this is a part of GK. GK के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, यू नो अबाउट इट। सोनी चैनल पर अमिताभ बच्चन ने स्टार्ट किया था, उसमें भी उसने GK के क्वेश्चन पूछे। And there's mostly questions are taken from all the subject, not particularly Hindi, English, Math. सबसे पूछे, मैथ को थोड़ा सा छोड़ देते हैं GK में। But SST is very, very, very important subject for your future competitive level. If you are going to fight in future, if you are preparing yourself for the future, if you are ready to fight the future against the whole competitors. So you have to prepare now, and you have to take interest in all subjects. Listen, you have to generate interest to all subjects, because you are going to fight, because you are preparing yourself, you are completing your base, you are learning all the subject very keenly, very deeply. But interest is very important now. Interest. You are taking particular interest in a subject. History, modern history, medieval history, ancient history, and in civics आपको civics बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में किसने किसने योगदान किया, कैसे बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कितनी मुश्किल से बना, कितने लोगों ने बनाया, कौन प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, प्रधान क्या होता है, ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन।
So civics is very important. And other geography. Geography are two types, Indian geography and world geography. So it is a very important part of particular knowledge and GK. इंडिया के बारे में कितना जानते हैं आप? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर. आप उसमें पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर आप रहते हैं, आप आसाम, दिल्ली, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, कहीं भी आप रहते हैं, सो आप अपनी स्टेट के बारे में कितने जानते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताइए. उनकी जो लेंथ है, उनकी ब्रेथ है, वो कितनी है, कितने किलोमीटर एरिया में एक्सपेंड करता है, इंडिया कितने एक्सपेंड करता है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, वहाँ पर कौन कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, उनकी कैपिटल्स क्या है, उनके जो वहाँ पर कौन सा रुपया चलता है, किस तरह की वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, और क्या क्या वहाँ पर विशेषता है. ऑल द मैटर्स आर रिलेटेड टू ए कंपटीशन एग्जाम. आफ्टर 12th, if you are going to fight, then you have to ready yourself now. Geography is very important part, and economics is also very important. जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, आपको पता है. सो हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हमारा इंडिया किधर जा रहा है? कितना रुपया आ रहा है? रुपये का जो लेवल है इंडिया का इस समय कितना लेवल नीचे गिर रहा है? या जो हमारे पॉपुलेशन है वो पिछले 10 सालों में कितनी ग्रोथ कर गई, अगले 10 सालों में कितनी ग्रोथ कर जाएगी? या जो इंडिया का जो पर्टिकुलर व्यक्ति का जो रुपया है ग्रोथ कर रहा है, एक व्यक्ति कितना ग्रोथ कर रहा है, पर्टिकुलर इनकम उसकी कितनी जनरेट हो रही है, ये सारे क्वेश्चन जो रुपये से रिलेटेड होते हैं that are a part of economics. So this is very important subject also. Now Sanskrit. You are getting bored when the Sanskrit teacher has come in your class. No. Don't get bored. You take interest now. Sanskrit is very important because this is the mother of all language. You know, this is the mother of all language. There are some basic rules in Sanskrit. Then you can take interest. Basically, संधि विच्छेद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड जो हम रूप याद करते हैं, शब्द रूप, क्रिया रूप, जैसे आपको गच्छति बताया गया. गच्छति मतलब क्या होता है? जाता है. ठीक है. गो गच्छति, गच्छता, गच्छन, गच्छसि, गच्छता, गच्छति, गच्छामि, गच्छामः, गच्छामि. तो ये क्या है? प्रेजेंट का फॉर्म. इसी तरह से हम फ्यूचर के फॉर्म के लिए अगच्छत लगा, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ या गमिष्यति लगा रहे सब, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. डोंट गेट बोर इन द संस्कृत सब्जेक्ट. नाउ स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर रूल्स ऑफ द संस्कृत. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसमें जो सुभाषितानी जो श्लोक्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. उनसे इतना नॉलेज मिलता है कि आप अगर इनके किसी एक एक्सरसाइज को भी अगर आप ध्यान से श्लोक पढ़ लेंगे तो आपको वो नॉलेज मिल जाएगा जो किसी दुनिया की बुक्स में मिलेगी, तो संस्कृत में मिलेगी. लिसन केयरफुली. संस्कृत में जो नॉलेज आपको मिलता है वो किसी सब्जेक्ट में आपको उतना डीप नॉलेज आपको नहीं मिलेगा. संस्कृत में रूल्स चलते हैं. यू फॉलो द रूल्स. एक हलंत का भी एक छोटा सा रूल था. पुस्तकम कैसे लिखते, माँ के आगे नीचे हलंत लगाना है या नहीं. विद्यालयम उसमें लगाना है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है इसमें. तो छोटी से छोटी चीज़ें, विसर्ग का आपको ध्यान रखना होता है. सह, अपने सह का तो सा और हा नहीं लिखना. सह, सा के आगे 2 डॉट. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. Sanskrit is the mother language of all
लैंग्वेजेस। सबसे प्राचीन भाषा है विश्व की। नाउ अकाउंट्स, जीके, आर्ट, कंप्यूटर, these are also very important subjects. Accounts are very important if you are running a particular shop or company, then you have to knowledge of accounts. CA is a very important part of accounts. बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं बट दे आर नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत इजी होते हैं। लोग कहते हैं अकाउंट्स बहुत कठिन है, नहीं। मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक ब्रांच, बट अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट के बारे में सीखते हैं, सेलिंग के बारे में सीखते हैं, बेचने के बारे में सीखते हैं। कोई उधार ले जाता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं, कोई नगद ले जाता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं, किसी का खाता खोलना है अपने अकाउंट से, बार बार लेन देन करता है। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर बिजनेस अकाउंट्स। आपने एक बिजनेस को ओपन करा तो कहाँ पे पैसा जाएगा, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। बैंक में अगर आप सेक्टर में जाना चाहते हैं, इफ यू आर गोइंग टू बैंक सेक्टर, इफ यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन ओपनिंग ए कंपनी, देन यू हैव टू नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ जीके ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन SST, बट ऑल द सब्जेक्ट को अगर हम मिक्स करते हैं एक्सेप्ट मैथ, बट मैथमेटिक्स भी इसमें आता है, थोड़ा रीजनिंग का पार्ट भी जीके में आता है। सो जीके इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आर्ट तो क्या कहने, आर्ट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द आर्ट आपको क्या कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ऊपर ले जा सकता है आपको आर्ट। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो ये आर्ट ही तो है। सबके मकान देखिए, आप अपने घर की छत पे चल के किसी में, सबके मकान अलग अलग तरह के, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस। ऑल द हाउसेस आर वेरी कलरफुल मैनर, द रूम्स आर वेरी डेकोरेटिव। हर जगह पर आर्ट है। आपके कपड़े पहनने के सेंस में भी एक आर्ट है, आपके बोलने में भी एक आर्ट है, आपके स्टेज पर परफॉर्मेंस करना भी एक आर्ट है। तो आर्ट क्या है, हमारी लाइफ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। सिर्फ कलम तक या पेन तक सीमित नहीं है आर्ट। आर्ट इज ए वेरी हाई सब्जेक्ट। एक स्कल्पचर है, वो मूर्ति बनाता है, वो भी एक आर्टिस्ट है। एक मेजन एक बड़ा सा मकान बनाता है, वो एक आर्टिस्ट है। एक आर्किटेक्चर एक बड़े से पुल की डिजाइन बनाता है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्ट। एक मशीन मैन एक पेज, नया पेज बना देता है, दैट इज ए पार्ट आर्ट। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड इन आवर सराउंडिंग्स, दैट इज पर्टिकुलरली आर्ट। आपका बैठना एक आर्ट है, किस तरह से आप बैठते हैं। आपका बोलना, आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, उनका आप किस तरह से फॉलो करते हैं, ये भी एक आर्ट है। आप सुबह के टाइम पर उठकर क्या करते हैं, कैसे टहलते हैं, हाथों की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, हाथ पैरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक आर्ट है। जिसको ये आर्ट पता है वो सीख लिया। किसी ने मार्शल आर्ट सीख ली, किसी ने जूडो कराटे सीख लिया, किसी ने पहलवानी सीख ली, किसी ने जिम खोल लिया, वो सब आर्ट है। तो आर्ट को आप इजीली मत लें। आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। सबसे ज़्यादा बेसिकली इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट। अगर आपने इमेजिनेशन सीख लिया आर्ट में, देन यू आर गोइंग टू टॉप। क्योंकि इमेजिनेशन सीखने के बाद आप हर सब्जेक्ट में इमेजिनेशन कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में आप एक नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर आपने इमेजिनेशन सीखी।
इमेजिनेशन के ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैसे इमेजिन करते हैं और इमेजिनेशन होती है। नाउ लास्ट, कंप्यूटर। वी आर लिविंग इन कंप्यूटर एज नाउ। आज हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, बिकॉज द यूज ऑफ कंप्यूटर इज अनलिमिटेड यूज हो गया। आज आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। इफ यू आर ए मास्टर ऑफ कंप्यूटर, इफ यू कैन मेक ए कंप्यूटर, इफ यू कैन असेंबल ए कंप्यूटर, इफ यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ यू कैन मेक एप्स, सो द यूज ऑफ कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है? कंप्यूटर वो नहीं है जो डेस्कटॉप में दिख रहा है। कंप्यूटर वो है जो आपके हाथ में है। दैट इज कॉल्ड पाम टॉप कंप्यूटर, इज योर मोबाइल, जिससे हम और आप बात कर रहे हैं। ये है कंप्यूटर का एडवांस रूप, जिसे हम पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसके पहले जो बहुत सारा कंप्यूटर आया है, जिसे हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, वो गोद में रख के चलाते हैं। उसके पहले जो कंप्यूटर आया था वो डेस्कटॉप था, जिसे हम मेज में रख के चलाते हैं। सो सबके हाथ में आज कंप्यूटर है। उसका नाम है मोबाइल। मोबाइल मतलब मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य। क्या डेस्कटॉप को हर जगह ले जा सकते हो? लैपटॉप को कैरी करके हर जगह ले सकते हो? हाँ, लैपटॉप को एक बार ले जा सकते हो, उसके लिए बैग चाहिए। पर ये जो मोबाइल है, पॉकेट कंप्यूटर है आपका, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो अपने साथ, और इसका अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। लेकिन इसका प्रॉपर सही यूज करना आना चाहिए, मिसयूज नहीं। मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू चैट, तो वो मिसयूज करने लग गए। उन्होंने इसका सही यूज समझा ही नहीं, उन्होंने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ उसको एक चैटिंग का माध्यम समझते हैं, सोचते हैं कि हमसे ये चैट करना है बस। या वो अपसेट चीज़ें देख रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, गलत चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, गलत दिशा में चले गए, पबजी खेलने लगे, सुसाइड कर लिया, फ्री फायर खेल रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन द स्टेज ऑफ स्टडी। ये सब चीज़ें बाद में करनी है व्हेन यू आर सेटल्ड। आप खूब गेम खेलिए, शाहरुख खान भी खूब गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, शाहरुख खान खूब खेलता है जब वो फ्री होता है, नॉट पर्टिकुलर लिविंग द जॉब। इसी तरह से आप भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल में मत लगिए। हाँ, आपके पास फ्री टाइम है, आपने पढ़ाई कर ली है, आपने होमवर्क कर लिया है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, अभी कोई नहीं आ रहा है, आपकी शॉप पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, देन यू कैन प्ले विद मोबाइल। बट यूज ऑफ मोबाइल इज टू लर्न द न्यू सब्जेक्ट्स। The new topic is very important in mobile. So guys, you already know today the subject is very important. All the subjects are very important. In mathematics is very important, science is very important, bio, chemistry, physics is very important, art is very important, GK is very important, computer is very important, SST is very important, science, Hindi, English, all the subjects are very important. But which is the most important subject for you? Which is the most important subject? Think. जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, that is very important for you. आपको पढ़ने में किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? आप सोचिए, जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत बेटर है, तो उसमें आप अपनी डीप स्टडी बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, उसमें और जानना शुरू कीजिए, रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की, क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। सो गाइस, मेक ए करेक्ट टाइम टेबल ऑफ ऑल योर वर्क। आपके लिए सारे काम इम्पोर्टेंट, आपके लिए सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। सो today we are going to finish the particular topic, which subject is important. The answer is all subjects are important. All subjects are important. Thank you very much. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, bye bye.